m n x to the power n minus 1. If it is integration of x and dx, then it is equivalent to xn plus 1 divided by n plus 1. लिख देती हूँ. Then m x to the power n plus 1 divided by n plus 1. Okay, these two are the main formula. ठीक है? These two are the main formula. Based on this, tell me, if it is given to you, y is equivalent to, ठीक है, t square. Let it be y is equivalent, let it be tq, and x is equivalent to 2a t square. Y is equivalent to tq, x is equivalent to 2a t square. आपको लेकिन फाइंड आउट करने के लिए दिया हुआ है dy by dx. Try it. dy by dx. And board is not clearly visible. Board is not clearly visible. Yes, ma'am. Is it visible now? Yes, ma'am. Ma'am. Yes, ma'am. Now it is visible. Excuse me, ma'am. Yes, tell me. Ma'am, how to determine if we have to apply integration or differentiation formula? For this particular question? Yes, ma'am. So you wait. We are doing it. Y is equivalent to TQ. So you can find out dy by dt. Yes or no? Tell me, dy by dt you can find out? Yes, ma'am. Then x is equal to 2a t square. You can find out dx by dt. एक को दूसरे में डिवाइड करो. dy by dt, dx by dt. Have you got? आया समझ में? Yes, ma'am. Now you show me the answer. Ma'am, just a minute. It is given y is equivalent to tq and x is equivalent to 2a t square. Ma'am, I said 3t by 4a. 3t by 4a. Or just Yes, the opposite. Or just the opposite. I have asked you dy by dx. I have asked you dy by dx. dy by dx is asked. Yes, anyone? Ma'am, dy is 3t square. Dy by dx is asked to you. How to find out?
So ma'am, we will divide dy by dx, right? Or do we have to differentiate? dy by dx is asked to you. Ma'am, 3t by 4. 3t by 4. ma'am, A is a Ma'am, A 3t by 2. 3t by 4a या 4a by 3t. ma'am, 3t by 4. Ma'am, 3t by 4 ही आ रहा है. ma'am, Yes, tell me. Why are you telling ma'am? You should tell question. ma'am, could you explain, ma'am, could you explain that how the 3d by 4 is coming? So you have to keep your patience. I will explain all the answers. First, Okay, let ma'am. me collect how many of you knows it. ठीक है? Yes, those who are telling 3t by 4a, you should confirm again whether it is 3t by 4a or 4a by 3t. I have asked you dy by dx. Okay, if y is given to tq, पहले देखो y is given to tq, then what is dy by dt? One who is asking ma'am, tell me dy by dt कितना है? ये जिसका डाउट था. Ma'am, I was asking that how. First you tell me. Here I am doing the same thing to answer you only, but you have to help me step by step. Y is equal to tq, तो dy by dt कितना हुआ? यहाँ लिख लेने से समझ में नहीं आएगा ना. dy by dt के 3t square. 3t square. तो why who is asking is not answering? 3t square यहाँ तो फॉर्मूला लिखा हुआ है ना. It is Yes, 3t ma'am. square. Yes, ma'am. Then ये confirm it. dy by dt is 3t square. Then the next one, x is given to 2at square. What is dx by dt? What is dx by dt? 480. 480. 480. ये आपको समझ में आया? One who is asking doubt. Explanation से भी आपको समझ में नहीं आएगा. फिजिक्स में बच्चों के पास बुक्स होता है with questions, बुक्स होता है with answers. They need a master. They need a tutor to help them. आप ये क्वेश्चन दिया है, मैं साइड में आंसर लिख रही हूँ. Ma'am, I have not understood properly. And you just tell me y is equal to mx to the power n dy by dx. ये फॉर्मूला आप कल देखे थे और टुडे इज योर फर्स्ट क्लास. No, ma'am. Ma'am, dy by dx is equal to mn x to the power n minus 1. हाँ, ये फॉर्मूला आप समझे कल से देख लिए थे. Yes, ma'am. तो सेम फॉर्मेट है. x is equal to 2at square. तो dx by dt कितना होगा? 480. 480. इसका आंसर है 480. इसका आंसर है 3t स्क्वायर. मेरे पास दो टर्म दिया हुआ है dy by dt, dx by dt. मैं इसमें से dy by dx नहीं निकाल सकती हूँ. Yes, ma'am. दोनों को डिवाइड करो. Yes, ma'am. We can निकाल सकते हैं, ma'am. तो करके दिखाओ ना. Okay, ma'am. और पछुल आउट है. ये रिपोर्ट करो. आउट इज पेन है. तो ये काम करना चाहिए. Ma'am, it's coming 3t upon 4a. Yes, ma'am. Yes, yes. dy by dx is dy by dt divided by dx by dt. My ink is not going well today. dy by dt by dx by dt. Then dy by dt मेरे पास है 3t square. 3t square
divided by 480 as it is coming. dy by dt dx by dt उल्टा कर दो. हाँ ठीक है. The correct answer is 3t by 4a. One who is asking, is it understood? One who is asking, is it understood? 3t by 4a. 3t divided by 4a. Is it understood? Tell me. Yes or no? Yes, ma'am. Okay. Now you do some more problem. You are given y is equivalent to 6x cube. Y is equivalent to, write down, 6x cube plus 3x to the power 3 by 4. 6x cube plus 3x to the power 3 by 4. Find out dy by dx. Six x cube plus 3x to the power 3 by 4. Ma'am, 18x square plus 9 by 4, 1 by x power 1 by 4. One who is asking last question. Last question में जिसका डाउट था, you can tell me the answer now. ये तो easy question है. You can do it. Ma'am, answer is 18x square plus 9x by 4 x to the power minus 1 by 4. Plus 3 into 3 by 4 into x to the power 3 by 4 minus 1. ये बेसिक फॉर्मूला है, उसके ऊपर दोनों को हम एडिशन करके लिखे हैं. इसमें भी किसको डाउट है क्या? Anyone having doubt here? I have a doubt. No, ma'am. What's your name? Aryan. Yes, ma'am. Yes, Aryan, tell me. इसमें क्या डाउट हुआ आपको? मैम डाउट मैम मेरे को डाउट आया कि मैम ये 18x स्क्वायर 3 into 3 by 4 x to the power 3 by 4 minus 1 आया कैसे? मेरे को ये डाउट था. ये कैसे आया आपको समझ में आ गया? फॉर्मूला हम साइड में रखे हैं. आपको डाउट क्या हो रहा है बोलूं? आपको ये डाउट आ रहा है. आपको दिया हुआ है a प्लस बी के होल स्क्वायर इज इक्विवेलेंट टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. ये दिया हुआ है. आपको यहाँ दिया हुआ है 2 प्लस 3 के होल स्क्वायर. आपको यहाँ लिखा हुआ है 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3. आप मुझे पूछ रहे हो ये यहाँ से आया कैसे? टेल मी. यस मैम, यही पूछ रहा था. यही पूछना था ना, ये यहाँ से आया कैसे? a के वैल्यू हम 2 लिए, b के वैल्यू हम 3 लिए. यस मैम. यहाँ हमारे पास फॉर्मूला क्या है? y इज इक्वल टू m x टू द पावर n. यहाँ आप छोटे बच्चे थे, अभी आप बड़े हो चुके हो. ऐसा नो आर्यन? यस मैम. सी योर हाइट एंड वेट. सब कुछ चेंज हुआ है ना 9 to 11th. आर्यन, तो अभी ये भी चेंज हो गया आपके लिए. आपको y इज इक्वल टू m ये दिया हुआ है, y इज इक्वल टू m x टू द पावर n. तो आपको dy by dx के फॉर्मूला यहाँ दिया हुआ है. dx क्या है? यहाँ m क्या है? कोफिशिएंट जो मल्टीप्लाई हुआ है. पावर n यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है और x के पावर n-1 हो जाता है. मैं सेम चीज m के वैल्यू क्या है? 6 लिया. n के वैल्यू क्या है? 3. mn दिया हुआ है 6 into 3 18. x के पावर कितना है? 3 minus 1 2. ठीक है. तो प्लस यहाँ 3, यहाँ x टू द पावर कितना दिया हुआ है? 3 by 4. फिर x 3 by 4 minus 1. Arun, what's the doubt? Tell me. Now ma'am, I have understood. अरे yesterday also you have done so many numericals. आप कब समझोगे? घर में जाके प्रैक्टिस करो. Yes ma'am. ये नहीं आज ही क्लास देखे फिर भूल गए, फिर कल आए दोबारा क्लास देखे.
डेली आप क्लास में आओगे जाओगे लेकिन यू विल नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग. ठीक है, बताओ ये सर नो. आगे चलें या इसी को करते रहें? मैम मेरे को मैम समझ में आ गया है. अभी समझ में आ गया आपको पक्का? ओके, नेक्स्ट formula is same. Next I am giving for your practice. Y is equivalent to x square cos x. Y is equivalent to x square cos x. बताओ. dy by dx. Y is equivalent to x square cos x. You have to find out dy by dx. Ma'am, minus 2x sin Minus 2x sin x. x. Yes, ma'am. नहीं, इतना इजी नहीं. Ma'am, minus x square sin x Ma'am. plus 2x cos x. The answer is minus Ma'am, x square Ma'am, sin sin x x plus 2x cos x. it's 2 cos x. 2x cos x. ये किसका आंसर है? जस्ट रेज योर हैंड्स, लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग डायरेक्टली और कितने बच्चों को नहीं समझ में आ रहे. वानी आर्य यू हैव डन, संकेत यू हैव डन, देवांश यू हैव डन. नेक्स्ट और किस को समझ में आ गया? आकांक्षा डन. सबको हैंड रेज करना है जिनको समझ में आया. जिनको समझ में नहीं आया यू हैव टू वेट. विल क्लियर. किस का डाउट है? Those who are having doubts, anyone? आर्यन तुम्हें समझ में आ गया? आर्यन सिन्हा, where are you? आर्यन समझ में कैसे आ गया? आर्यन तुम्हें कैसे समझ में आ गया? मुझे समझाओ. आर्यन यू टेल मी. आर्यन समझ में नहीं आया तो झूठ मत बोलो. यहाँ यू हैव टू क्लियर योर डाउट्स. ये आपका अपनी क्लास है. यस मैम. तो आपको यहाँ डाउट क्लियर करना पड़ेगा. यस मैम. जो जितना डाउट सुनता है वो फिजिक्स में उतना ही अच्छा मार्क्स रखता है. यू नो. यस मैम. तो इसलिए आपको डाउट्स पूछना पड़ेगा यहाँ. आप ये नहीं कि हाथ उठा दो कि मुझे समझ में. संकेत, आर यू अंडरस्टैंडिंग? संकेत, वेयर आर यू? Yes, ma'am. संकेत, कल के डेज में तुम 4 बार ज्वाइन किए हो और लीव किए हो. Yes, व्हाट्स द ma'am. रीजन? व्हाट्स द रीजन? मैम मेरा इंटरनेट मैम थोड़ा वीक था. कुछ बच्चे हैं जो लास्ट मोमेंट में ज्वाइन करते हैं और चले जाते हैं. मैम मैंने अटेंडेंस. टाइम पे ज्वाइन किया था. Okay, those who fail to understand, you are not telling, but this is based on the formula u and v. U and v formula, multiplication formula. Multiplication में क्या होता है? If y is equal to uv, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है dy by dx is equivalent to u dv by dx plus v du by dx. ये हमारे पास फॉर्मूला होता है. हम u किसको माने हैं? x स्क्वायर. v किसको माने हैं? cos x. u is x square, v is cos x. u is x square, v is cos x. तो dy by dx मैं पहले u लिखूंगी. u को मैंने x square लिख दिया. फिर dy by dx of cos x लिखा. फिर प्लस cos x लिखा v. dy by dx of x square लिखा. तो यहाँ x square बाहर आ गया. cos x का होता है माइनस साइन x. कल ही फॉर्मूला में था तो x स्क्वायर माइनस साइन x आ गया प्लस cos x ऑलरेडी है. x स्क्वायर का dy dx होता है 2x. ओके, इज द आंसर अंडरस्टूड? होप सो. यस और नो? Yes, ma'am. Yes. Most of the students have raised their hands. Now the next question I am giving. और 3-4 क्वेश्चन के बाद इसको बंद कर रहे हैं. Next question I am giving, y is equivalent to 2x minus 5 to the power 10.
मुझे dy by dx निकालना है. Next we'll start integration. Y is equivalent to dy by 2x minus 5 to the power 10. Ma'am, 22x minus 5 to the power 9. Vansika, you are giving. Ma'am, Vani. Vani, very good. 22x minus 5 to the power 9. Any doubt here? Aryan, Kanak, Kunjan. No, ma'am. Linay, where are you? Devans, Parthi, you have also given the answer. Or you are asking doubt? Arav Grewal, are you understanding? Arav Grewal, roll number 1. कल की क्लास में आप नहीं थे आरव ग्रेवाल. फिजिक्स के क्लास इतना ऑफन करोगे तो नहीं हो पाएगा. हमें 20 कहाँ से आया? 20 कहाँ से आया? ओके. सपोज मैंने 2x माइनस 5 को 2x माइनस 5 इज इक्विवेलेंट टू m लिख दी, तो dy बाई dm कितना होता? मेरे पास y हो जाता m टू द पावर 10, तो dy बाई dm कितना होता है? यू टेल मी dy बाई dm कितना होगा? y इज इक्वल टू m टू द पावर 10, dy बाई dm कितना होगा? फॉर्मूला यहाँ दिया हुआ है, यू आर नॉट अप्लाइंग. 10 आ जाएगा कोएफिशिएंट, m टू द पावर 10 माइनस 1 ये आएगा, तो आ गया मेरे पास 10 इंटू m टू द पावर 9. m क्या है? 2x माइनस 5. लेकिन ये dy बाई dm है, मुझे निकालना है dy बाई dx. dy बाई dx को मैंने लिखूंगी dy बाई dm इंटू dm बाई dx. dm बाई dx, तब जाके dm कट के dx आएगा. ये मैंने दोनों को निकाल के फिर मल्टीप्लाई करूंगी. मेरे पास dy बाई dm इतना है, तो dm बाई dx कितना है? ये m है. dm बाई dx कितना है? dm बाई dx इज इक्विवेलेंट टू d बाई dx ऑफ 2x माइनस 5. दिस इज इक्विवेलेंट टू 2. इसकी वैल्यू 2 है और इसके वैल्यू 10 m टू द पावर 9 है. दोनों को मल्टीप्लाई करो, m की वैल्यू बैठाओ. yes or no? 20 कैसे आया पता चला? टेल मी yes or no? Yes, ma'am. किसका डाउट था 20 कैसे आया? अग्निश, इज इट योर डाउट? हम सिद्धांत. सिद्धांत अभी सिद्धांत दो सिद्धांत है ना. यू आर सिद्धांत शर्मा और सिद्धांत जैन. शर्मा. सिद्धांत जैन को कोई देखा है? अटेंडेंस में नहीं है मेरे पास उसका. नो. ओके. दीक्षिता, वेयर आर यू? Dikshita, are you present here? Yes, ma'am. Dikshita, you have done differentiation integration in Shweta ma'am's class? No, ma'am. Okay. Are you understanding? Yes, ma'am. तो ये डायरेक्टली 20 इंटू 2x माइनस 5 टू द पावर 9 आप लिख सकते हो. आप यहाँ से देखोगे, यहाँ 10 है, यहाँ 2 है. बच्चे क्या करते हैं? डायरेक्टली 20 फिर 2x माइनस 5 टू द पावर 9 लिखते हैं. बट द एक्चुअल प्रोसीजर इज दिस. ये प्रोसीजर आपको दिखाना नहीं है. यू कैन राइट डाउन द आंसर, बट इफ यू अंडरस्टैंड द प्रोसीजर द आंसर विल बी करेक्ट. यू कैन वेरीफाई इट. इज इट ओके? एनी डाउट हियर? आर्यन सिन्हा, कहाँ हो? आर्यन, कनक, कुंजल, संकेत, थोड़ा सा क्लियर करो. आपको डाउट है तो हम और स्लो चलेंगे. Ma'am, even in high marker questions we have to not explain this for 22x minus 5 9. Oh, this is mathematics. We need physics only. ये फॉर्मूला आपको सिर्फ बेसिक सिखाने के लिए दिया जाता है, वन टाइप ऑफ ट्रिक. ये जो मैंने प्रोसीजर दिखाया, बच्चे तो इसको देख के डायरेक्टली लिख दोगे ना. 50 मार्क्स का सिलेबस है. यू आर हैविंग नियरली 2 बुक्स ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन. तो आप इतने छोटे छोटे फॉर्मूला कहाँ एक्सप्लेन करोगे? ठीक है.
ये सिर्फ बेसिक्स है. फॉर दिस ओनली वी आर हेल्पिंग यू. ओके, नेक्स्ट वी आर कंटिन्यूइंग इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन में आई हैव गिवन यू द मेन फॉर्मूला x and dx. इंटीग्रेशन इज इक्विवेलेंट टू x टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1. ये सिंपल सा फॉर्मूला है. ठीक है. अगर इसके बेसिस पे मैंने आपको x टू द पावर 5 dx दिया तो यू कैन इजीली फाइंड आउट x टू द पावर 5 dx कितना होगा. आर्यन, कभी तो आंसर इमीडिएटली दो. Ma'am, x to the power 6 upon 6. X to the power 5 is power 6 x to the power 6 by 6. Yes, ma'am. Suppose मैंने यहाँ लिमिट 2 to 3 दे दिया. Then you will write down the limit 2 to 3. ये लिमिट किसके वैल्यू दिया हुआ है? x के वैल्यू दिया हुआ है. ठीक है. तो I have taken common 1 by 6. x to the power 6 है मेरे पास. I am having x to the power 6. तो x के वैल्यू पहले मैंने 3 पुट करूंगा. 3 to the power 6 माइनस करूंगा 2 to the power 6. Then I will write the answer. Is it understood? जो लिमिट है, how to put the limits, and the limit is given for whom? Limit is given for x here. तो x के वैल्यू कितना है? पहले मैं लूंगी 3, बाद में मैं लूंगी 2. तो 3 to the power 6 minus 2 to the power 6. Whatever. why did you take 1 by 6 common? क्या क्या 1 by 6? Why I have taken common? Why have you taken it out? तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है क्या? बहुत बुरा लग रहा है तो यहाँ लिख देती हूँ. और ये 6 इज ए नंबर, x इज ए वेरिएबल. ये जो लिमिट्स पुट किया जाता है दैट इज फॉर वेरिएबल ओनली. x का वैल्यू मैम वो ब्रैकेट में मैम सिर्फ न्यूमरेटर में लगना चाहिए ना. क्या क्या मैम जो मैम सेकंड स्टेप में जो ब्रैकेट लगाया आपने मैम वो सिर्फ x पावर 6 पे ही लगेगा ना. हाँ, हम तभी वो शायद कह रही कि आपने कॉमन कैसे ले लिया. Yes, ma'am. नहीं 6 को यहाँ लगा के भी आप निकाल सकते हो. ये पावर नहीं है, ये कोई पावर नहीं है, ये लिमिट्स है. लिमिट्स मीन्स वेरिएबल में दिया जाएगा. ठीक है. ये मेरा इंटीग्रेशन का रिजल्ट है. पूरे इंटीग्रेशन का लिमिट यही है. इंटीग्रेशन के रिजल्ट के साथ यही जाएगा. दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. आप इसको पावर मत सोचो. ये 3 मेरा पावर नहीं है, 3 x के वैल्यू है. पावर तो 6 है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? आ रहे थोड़ा समझ में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Then I have given you another one. कैसे लिमिट्स पुट करते हैं. सपोज मेरे पास है p q dt. I have to find out the value of time from 0 to 2 second. Tell me the value. Exact आंसर बताओ exactly. 0 to 2 t q dt. इंटीग्रेशन क्या होगा? Zero to 2 t to the power 4 upon 4. t to the power 4 upon 4. t में क्यों आंसर आएगा जब मैं लिमिट दी हूँ? 4 to the power 4 upon I'm 4. 15 by 4. कितना? 15 by 4. सिर्फ 4 है. हम सिर्फ 4 है. सिर्फ 4 है. कितने बार में आंसर आया देखो? 5 times you have given the answer. Akshita, are you understanding? Ma'am, 2 to the power 4 minus 0 upon 4. t to the power 3 plus 1 मैं प्रॉपर प्रोसीजर के साथ चल रही हूँ. फिर लिमिटिंग वैल्यू आप दोगे 0 to 2. दिस इज इक्विवेलेंट टू 1 by 4 टेकिंग कॉमन. t 4 है, 2 to the power 4 minus 0. 2 to the power 4 कितना है? 16. 1 by 4 into 16. The answer is 4. The time is 4 seconds. Any doubt here? Aryan Sinha, where are you? Linoy. No doubt, ma'am. Where is Linoy? Linoy is a student who has joined for 10 minutes yesterday. कोई तो 5 minutes ज्वाइन करके चला जाता है. जैसे सरकारी ऑफिस होता है ना, बस ज्वाइन करो, अटेंडेंस देके आ जाओ. Some students are doing like this. Let me take your attendance now. ठीक है, अटेंडेंस एंड में लेने से some are joining at the end only. Yes, Arav Grewal, are you present today? Arav Grewal, attendance you can take any time from tomorrow onwards. Arav, yes or no? Arav Grewal, no response.
हैंड रेज भी नहीं है, नो रेस्पॉन्स, नो हैंड रेज. नेक्स्ट आरव शर्मा, जल्दी. ओके अग्निश. प्रेजेंट मैम. ऐश्वर्या थोड़ा जल्दी बोलो. आकांक्षा. Present, ma'am. अक्षिता. Present, ma'am. अमन. अमन नो रेस्पॉन्स. आर्यन सिन्हा. Present, ma'am. आयुष. आयुष नो रेस्पॉन्स. भव्या नो रेस्पॉन्स. दमन. प्रेजेंट मैम. देवांश. Present, ma'am. दृशन. Present, ma'am. Ma'am. दृशन कल कल तो तुम पूरा दिन स्क्रीन पे थे नहीं. दृशन. Present, ma'am. Yes, tell me your name. किसका छूट गया बताओ. I'm Drishan. दृशन तो हो गया. Present. What's your name? Ma'am, Bhavya. Abhay is present. Okay. Next Gautam. Present, ma'am. जयंत. Present, ma'am. जयंत कल कितने टाइम तक क्लास में थे? मैम मैं क्लास में नहीं था. मैम मेरा स्क्रीनशॉट नहीं है. लेकिन तुम्हारे नाम दिखा रहे डाउनलोड अटेंडेंस में. मैम कल कितनी देर क्लास में था मैं? हाँ 2 मिनट्स दिखा रहा है सिर्फ. मैम 2 minutes. I don't know. I was in the class. You are in the class or you are out of the class? Ma'am, I am in the class. But your attendance was very short duration yesterday. Kanak. Next Kanak. Present, ma'am. Kunjal. Present, ma'am. Lakshya. Present, ma'am. Linay. Present, ma'am. लीने कल क्यों भाग गए थे क्लास छोड़ के? मैम कब? 1000 explanations you are having नहीं? प्रज्ञा. प्रज्ञा where are you? प्रज्ञा आप कभी yes no नहीं बोलते हो नहीं? अभी आज तो बोल दिए. ऋषभ. ऋषभ कल के क्लास में भी आप ज्वाइनिंग एंड लेफ्ट किए हो. ऋषभ. शाश्वत. शाश्वत आर यू प्रेजेंट टुडे? Present, ma'am. श्रिया. श्रिया नो रेस्पॉन्स. सिद्धांत शर्मा. Present, ma'am. Priya Ma'am, present. Shriya is present. Yes, ma'am. सिद्धांत शर्मा. प्रेजेंट मैम. सिद्धांत जैन. सिद्धांत जैन. Present. इससे पहले मैंने पूछा था आप आंसर नहीं दिए. सिद्धांत जैन आर यू हियर और नॉट? यस्टरडे यू आर एब्सेंट. सिद्धांत जैन. Ma'am, present था yesterday भी. लेकिन आपके नाम के साइड में जैन नहीं दिखाई जा रहा मेरा डाउनलोडेड अटेंडेंस में. वानी यू आर प्रेजेंट? वानी. Yes, ma'am. वंशिका यू आर प्रेजेंट? Yes, ma'am. Present. अनुमिता. संकेत. अनुमिता नो रेस्पॉन्स. संकेत. प्रेजेंट मैम. Anumita, if you are present, you can send a message. You can raise your hand. Kana. Present, Kana, ma'am. are you present? Yes, ma'am. Dikshita, you are present. Yes, ma'am. Okay. Who is Shivans? One name Shivans I found. Present, ma'am. Shivans, when you joined? 11th A में आप कब ज्वाइन किए हो? Ma'am, I joined the school last week. But your attendance I have given from yesterday only. Yes, who is Galaxy? One name. I'm present. When did you join 11th A? Ma'am, after summer holidays. So your name is not here with me. Anumita, I have given you present. Galaxy, I don't find your name earlier. ऐसे नहीं अटेंडेंस कम हो जाएगा. साहिल, who is Sahil? One name Sahil was there. Who is Sahil? Anyone named Sahil here? No. But Sahil, someone Sahil was there yesterday. Okay. Now you tell me. This thing is. Ma'am, Sahil. मैम गौतम कुमार प्रेजेंट. Gautam, I have given you attendance. I think so. Gautam, I have given. मैम दो Sahil. गौतम है. नहीं मेरे पास एक ही गौतम है मेरे लिस्ट में. मैम आई एम न्यू टू द सेक्शन. Okay, tell me what's your name? Gautam.
Kumar, Gautam Kumar. Gautam Kumar. When did you join? 3-4 days ago. So you are attending physics class? कल की फिजिक्स क्लास में आप थे क्या? Yes, ma'am. ओके. एनीवन लेफ्ट जिसका नाम यहाँ नहीं है? मैम अंशिका. टेल मी. मैम अंशिका. ऐश्वर्या. ऐश्वर्या, I have already given you attendance. Anyone else जिसका नाम नहीं? मैम संकेत. You can raise your hands if it is not audible. Yes, ma'am. और किसका नाम इसमें नहीं लिए मैंने? Anyone left? अंशिका. Ansika. Bansika तो I have already told. One Ansika is there. Yes, ma'am. When did you join? 3 weeks ago. So you are present yesterday? No. In yesterday's attendance it was not there. मैंने सिर्फ yesterday's के attendance को copy की हूँ. Anyone left? और किसका नाम नहीं है इसमें? No. Ansika, yes, I have seen your name in the group, but I could not find it here. Okay, now you take this type of questions. Suppose you are having 1 by x dx. These are the formula. 1 by x dx. Anyone who has gone through the formula? What will be the answer? No. 1 by x dx. Integration. Log. X to the power minus 1 dx. This is otherwise known as log x. 1 by x dx is your log x. Simply you will write log x. This is the formula. You have to write down the formula. Formula सारे आपको रटना पड़ेगा. It is given in all books. But we will do the numericals here. If you are given the x square plus 2x plus 1 by x dx. इसके इंटीग्रेशन अभी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स में आ जाओ तो यू कैन राइट इट x स्क्वायर dx. पहला वाला टर्म में x स्क्वायर dx, सेकंड टर्म में 2x dx, थर्ड टर्म में 1 by x dx. टेल मी द आंसर. टेल मी द आंसर. Ma'am, x cube by 3 plus x square plus log x. x cube by 3 plus x square divided by 2 कट गया plus log x. How many of you have understood it? Yes, Kanak, tell me. Are you understanding this? Yes, Simpler to complex will move now. The next question is you are given ax plus bx square plus c cos x. C cos x. This one is c cos x dx. Integration. Tell me. I'm writing it simpler term. First one is ax. ax square by 2 plus bx cube by 3 plus c sin x. Plus c cos x dx. आप बोले हो आंसर, आप बोले हो ax square by 2 plus bx cube by 3 plus c sin x. C sin x. Any doubt here? No. Any doubt here? Kanak, where are you? Ma'am. Yes or no? Yes, ma'am. मैम ये क्वेश्चन में दिया होगा ना मैम ABC कांस्टेंट है. हाँ, ABC कांस्टेंट ही दिया जाएगा. नो प्रॉब्लम. ABC और कांस्टेंट. ठीक है. Ma'am, Yes. ma'am, shouldn't it be c minus sin x? आपके पास दोबारा देखो फॉर्मूला में d by dx of sin x क्या होता है? d by dx of sin x is cos x. Yes or no? Yes, ma'am. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. cos x dx इंटीग्रेशन is equivalent to integration of d sin x.
This is the formula actually. Differentiation is just the opposite of integration and integration is the opposite of differentiation. अगर मैं dl का इंटीग्रेशन लेती हूँ तो क्या लिखती हूँ? Tell me. L dv का इंटीग्रेशन लेती हूँ क्या लिखती हूँ? v ऐसा नो? Yes, ma'am. t का इंटीग्रेशन लेती हूँ t लिखती हूँ. ऐसे d sin x का इंटीग्रेशन लेती हूँ क्या लिखूं? What is the answer? Minus cos x. अरे d sin x मैम, I'm telling just like the same. dl is l, dv is v, तो d sin x is Sin x only. तो राइट हैंड साइड में मेरा sin x है. तो sin x is equivalent to integration of cos x dx. This is the formula. फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है. डिफरेंशिएशन आपको पता है d by dx of sin x cos x. तो cos x का इंटीग्रेशन प्लस sin x है, माइनस नहीं होगा. यू आर आस्किंग ना यहाँ sin x क्यों है, माइनस sin x क्यों नहीं है. आई हैव एक्सप्लेन्ड इट हियर ओनली. आर यू अंडरस्टैंडिंग ना? एक्सप्लेनेशन ज्यादा टॉप हो गया. एक्सप्लेनेशन के साथ दोबारा बता दो. क्या दोबारा बता दो. देखो d by dx of sin x is cos x, ये समझ में आया? फॉर्मूला है ये. यस. इसमें से मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया. तो d of sin x को राइट हैंड साइड में लिख दिया. तो cos x dx को यहाँ लिख दिया. cos x into dx is d of sin x. d means derivative of sin x. तो cos x dx का इंटीग्रेशन is equivalent to d of sin x. d of sin x is sin x, क्योंकि d of l l, d of v v, d of t t. तो d of sin x sin x है. आया समझ में? यस. इसलिए आपको ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन दोनों एग्जैक्टली अपोजिट है. cos x का जो इंटीग्रेशन है sin x का वो डिफरेंशिएशन है. cos x dx इंटीग्रेशन हमेशा dx dv dt ऐसे चलेगा क्योंकि ऑलरेडी डिराइव्ड हो चुका है, डेरिवेशन हो चुका है. फॉर दिस ओनली इट इज इंटीग्रेशन. तो cos x का इंटीग्रेशन sin x का डिफरेंशिएशन cos x. इज इट अंडरस्टूड? थोड़ा टाइम लगेगा, ये मैथमेटिक्स है, लेकिन हमें कहाँ जरूरत है. फॉर व्हाई वी आर डूइंग इट, वी आर कमिंग टू दैट पॉइंट. नाउ यू टेक, you know common equations of motions. You all know what are the equations of motion. Tell me, Newton's laws of equations of motions. Newton's laws best. What are the three equations? First T one, is equal to u plus at. Second. S is equal to ut plus half at square. V square is equal to u square plus 2as. you know the derivations of this equation. ये कैसे derive हुआ था? Mathematically और graphically? मैम Graphically. डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. Graphically. Displacement time, velocity time, distance time, acceleration time, whatever may be. But for class 11, इनके derivations है by calculus method only. आपको क्वेश्चन में लिखा जाएगा by calculus method only. तो you will not do by graphical method or by mathematical method. तो by calculus method only में how to do it? Suppose I take first equation v is equal to u plus at. मेरे पास दो फॉर्मूला है, v is equivalent to ds by dt और एक फॉर्मूला है acceleration is equivalent to dv by dt. Anyone can guess मैं कौन सी फॉर्मूला लूंगी इसमें से? जैसे मेरा इक्वेशन 1 आ जाएगा, हम सेकंड वाला लेंगे. सेकंड वाले. someone is guessing सेकंड वाले. just see, सेकंड वाले अगर मैं ले लूंगी a dv by dt, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो a by 1, तो a dt is equivalent to dv. दोनों साइड में इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन की लिमिट ये t के ऊपर है तो 0 to t लिख दो. ये v के ऊपर है तो u to v लिख दो. u to v. तो इस साइड क्या हो गया? व्हाट इज द इंटीग्रेशन वैल्यू? 80. कहाँ से जाएगा? 0 to t. इस साइड में इंटीग्रेशन वैल्यू इज v, dv का इंटीग्रेशन v, u to v जाएगा. तो इस साइड में हो जाएगा a into t minus 0. इस साइड में आ जाएगा v minus 0.
तो इसको इकट्ठे कर दो, यू आर गेटिंग v is equivalent to u plus at. This is the derivation. Is it understood? Write down it. Take your time. Tell me whether it is understood or not. Bhavya, you are Bhavya Misra. I think someone else Bhavya is there. मैम 2 भव्य। Yes, ma'am. तो यहाँ मेरे पास तो एक ही भव्य लिखा हुआ है। मैम because one of Ma'am, I am a new admission. You are the new admission. Who is the old admission? Tell me. मैं आपके साइड में टाइटल लिख दूँ। मैम भव्य मिश्रा। भव्य की उसके आगे क्या है भव्य? मैम मिश्रा। Old one is Misra. New one is Ma'am, Bhardwaj. Bharadwaj. You are from our school or from other school? Ma'am, other school. देखो मैंने आपका अटेंडेंस ही नहीं दे रहा है। आपको बोलना चाहिए ना कि मेरा अटेंडेंस नहीं आ रहा है। मैम आपने भव्य नेम 2 बार लिया था तो मैंने एक बार रेस किया था। मुझे वही वाला भव्य कहेंगे, भव्य भरद्वाज अभी मैसेज में चल रहा था तो मैंने सोचा कि जो मेरे पास प्रेजेंट है वो भव्य भरद्वाज है। ओके मैम। यू आर प्रेजेंट यस्टरडे आल्सो। आई विल गिव यू अटेंडेंस। टेल मी। यस मैम, आई वाज प्रेजेंट। तो इससे पहले कब को प्रेजेंट थे? 18th को क्लास में। मैम आई टुक माय फर्स्ट क्लास इन 22। 22? यस मैम। 22 वी डोंट हैव एनी क्लास। 23rd से क्लास है हमारा। 23rd था फिजिक्स। 22 में मेरा फिजिक्स नहीं था। मेरा फिजिक्स 3 दिन है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे लगातार है। ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन इज क्लियर। एनी डाउट हियर? Yes, any guess for the second equation? Tell me. किसको डाउट है बताओ। मैम इंटीग्रेशन ऑफ a dt is 80 और 280 a to the power 2 upon 2। यहाँ से देखो dt का इंटीग्रेशन t है, a इज ए कांस्टेंट, मल्टीप्लाई कर दिया तो 80 रहेगा ना। आया समझ में? यस मैम। ओके, सेकंड इक्वेशन एनी गेस? कौन सा फॉर्मूला लूंगी? सेकंड इक्वेशन v is equal to ds dt। v is equal to ds by dt। ये फॉर्मूला ले लूंगी, ये बहुत इजी है। v dt is equivalent to ds, तो दोनों का इंटीग्रेशन 0 to s लिख दो और यहाँ u to v लिख दो। उसके बाद v के वैल्यू बैठा दो, u plus 80, v is equal to u plus 80 dt, इंटीग्रेशन u to v, और यहाँ ds का इंटीग्रेशन आपका s minus 0 आ गया, लिमिट बैठा दी एक साथ। तो यहाँ u dt u to v प्लस 80 dt, नहीं यहाँ u to v नहीं, यहाँ 0 to t आएगा। वेट, dt है 0 to t आएगा, ये 0 to t आएगा। ठीक है, दिस इज इक्वल टू s। तो u dt इज योर ut माइनस 0 विथ लिमिट प्लस हाफ आ जाएगा t dt, t स्क्वायर a t स्क्वायर 0 to t square minus 0 is equivalent to s. Then you are getting the correct formula. S is equal to ut plus half a t square. Is it understood? Any doubt you can tell me now. स्क्रीन फोकस। क्या क्या? मैम स्क्रीन फोकस नहीं हो रही। नहीं आ रहा है? Is it not clear? Not seen? Tell me. मैम ब्लर Yes, है। It's clear. Second equation is understood. If second equation is understood, tell me. Third equation, what formula I will take? We will take both of them. We will take both. Okay. Who is telling Ma'am, both? a is equal to dv by ds। A is equivalent to dv by dt। इसको मैंने दूसरे फॉर्म में लिखूंगी, dv by ds into ds by dt। कोई मिस्टेक नहीं है क्योंकि ds कट जाएगा। और इसी को फिर दोबारा मैं लिखूंगी dv by ds
dv by ds into ds by dt को मैंने v लिख दूंगी. ds by dt is v. Then I'll write हम ds को फिर a के पास ले जाएंगे. a ds cross multiply. Here it is v dv. Here the integration limit is from u to v क्योंकि v के ऊपर है. यहाँ 0 to s. तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड विल कम as a s minus 0 with limit plus v square by 2 minus u square by 2 u to v. तो ये है जाएगा a s, तो यहाँ आ जाएगा हाफ v square minus u square. तो आपका इक्वेशन आ गया v square is equal to u square plus 2as. Any doubt here? All three equations derivation is of 3 marks. आपके लिए रेगुलर क्वेश्चन रहेगा. Ma'am, can you tell the third one again? थर्ड वन में हम लोग ये वाला इक्वेशन लिए हैं, एक्सीलरेशन इज dv by dt, लेकिन dv by dt को हम इसको थोड़ा सा चेंज किए हैं पैटर्न dv by ds, क्योंकि यहाँ जो वेलोसिटी है s के हिसाब से वेरिएबल है, इनटू ds by dt. यहाँ देखो ds ds कट जाता है, dv by dt रह जाता है. तो a इज इक्विवेलेंट टू dv by ds इनटू ds by dt इज योर v. मैम s मैम Tell me. हमने एक्सीलरेशन को कांस्टेंट लिया है. हाँ, ये इक्वेशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है. वेरिएबल एक्सेलरेशन नहीं है ये कांस्टेंट इक्वेशन वाला है. ठीक है. एनी डाउट हियर? नो. देवांश, परती, आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, ma'am. Okay, why we are reading differentiation integration commonly known as calculus? Because we need it in physics. ये साइड में आपको दिया हुआ है, फिजिक्स में इस काम में आएगा. इक्वेशन डेरिवेशन बहुत सारे आपको प्रॉब्लम सॉल्यूशंस करने के लिए भी ये जरूरत है. फॉर दिस ओनली वी आर यूजिंग इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन. अगेन आई एम गिविंग वन मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन यस्टरडेज. डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कल में सिखाई थी. If I want to move from distance to velocity to acceleration, what to do? Distance to velocity. differentiate it. Again, take one question. If you are given s is equivalent to 3t cube minus 2t square, यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा. अगर मैं सिंगल वेरिएबल ले लूंगी ना, सपोज प्लस 3t, तो एग्जैक्टली मैच नहीं करेगा. तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? Just tell me what will be velocity, what will be acceleration? जल्दी, अभी तो स्पीड हो गया. 9t square 9t square minus 4t plus 3. यहाँ acceleration हो जाएगा 18t minus 4. 18t minus 4. इतना ही होगा. Yes, ma'am. ठीक है. अगर मैं इसमें मेरे पास एक्सीलरेशन इतना दिया हुआ है, मैं वेलोसिटी निकालूंगी. एक्सीलरेशन इज गिवन दिस वन, आई वांट टू फाइंड आउट वेलोसिटी. मैम हो जाएगा 9t square. 18t Yes, ma'am. Integration. minus 4 dt इंटीग्रेशन. ये वाला जो कॉलम प्रॉब्लम लिए थे और आज का जो प्रॉब्लम है इसमें एग्जैक्टली मैच नहीं करेगा. यू कैन सी 18t square by 2 plus 3 नहीं आएगा. minus 4t plus 3 नहीं आएगा. कल के जो प्रॉब्लम है सेम प्रॉब्लम इफ आई गिव इट, यहाँ देखो सेम प्रॉब्लम इफ आई गिव इट इन दिस मैटर. अगर मैंने आपको ऐसे दे दिया s is equivalent to 3t4 minus 2t cube, तब आएगा. वेलोसिटी कितना होगा? 4 3 जा 12t cube minus 2 3 जा 6t square. I hope everyone is gaining speed now. सबको एटलीस्ट स्पीड में समझ में आ गया. दमन if लाइट पढ़ अगर आप 11th A में हो, आपको इतनी प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना है कि कितना टाइम होता है पता? 1 मिनट में 3 न्यूमेरिकल्स होता है.
आपको क्लास में आपको प्रैक्टिस स्पीड पता चल जाएगा। जिसका मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं, यू हैव स्कोर्ड 9900 इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग मीन्स आप इमीडिएटली मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इवन इन फ्रैक्शनल एडिशन, फ्रैक्शनल मल्टीप्लिकेशन कैन डू, तब जाके आपका जेईई मेंस का स्कोर बढ़ेगा। ठीक है, v is equal to 12tq minus 6t square, acceleration immediately 36t square minus 12t. 36t square minus 12t. ये आ गया। दिस इज आवर एक्सेलरेशन गिवन। मुझे वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। एक्सेलरेशन dt इंटीग्रेशन, एक्सेलरेशन इज 36t square minus 12t dt, इसका इंटीग्रेशन। टेल मी 36t square, वही आ जाएगा 12t cube integration minus 12t dt integration. You can write directly what is velocity. You will getting 12tq. Any doubt here? Minus 6t square आपको मिल गया, क्योंकि वेरिएबल का ये थोड़ा ज्यादा है। Then you are given velocity, this one velocity is given to you 12tq minus 6t square. You find displacement v dt integration कितना हो जाएगा 12tq dt integration minus 6t square dt integration. You are getting the final value 12t4 by 4 minus 6tq by 3, that is equivalent to 3t4 minus 2tq. जो प्रॉब्लम हम कल किए थे, दिस इज द रिपीटेशन ऑफ द सेम प्रॉब्लम. Again I am telling, if you want to move from distance to velocity to acceleration, what is the procedure? Differentiation or integration? Differentiation. If you want to move in the opposite direction, acceleration to velocity to distance, integration. Differentiation, integration हम पढ़ेंगे और बहुत ही काम के लिए. Take one numericals because we are having 2 minutes more. मेरे को एक डाउट है. यही समझ में नहीं आया? नहीं मैम, जो मैम आपने पहले लिखा था, तो फिर जब हम उसे मैम जब हम एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकाल रहे थे, तब तो मैम कांस्टेंट की जरूरत थी मैम, तब भी हम कांस्टेंट क्यों नहीं लेते? तब भी कांस्टेंट की जरूरत है। कांस्टेंट लोगे तब जगह मैच होगा। कांस्टेंट हम फाइंड आउट नहीं किए। मैम आपने बोला था कि कांस्टेंट यूज ही नहीं करते हैं फिजिक्स में। तो फिजिक्स में उस टाइप के प्रॉब्लम देंगे ही नहीं हम इस टाइप का ही देंगे जहाँ वेरिएबल का अमाउंट थोड़ा हाई होगा। ये तो मैथमेटिक्स है ना, वी आर यूजिंग फॉर आवर कन्वीनियंस ओनली। हम उसके लिए अप्लाई करेंगे जहाँ हमारे लिए एप्लीकेबल होगा। ठीक है, फिजिक्स में कांस्टेंट की जरूरत नहीं होगा। जिस इक्वेशन में होगा उसको हम दूसरे मेथड में करेंगे। डिफरेंशिएशन इज ए टूल, ट्रिगोनोमेट्रिक, अलजेब्रिक फार्मूला, बहुत सारे टूल होते हैं हमारे पास 3 वेरिएबल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। व्हाट इज द बेस्ट मेथड? आपको इक्वेशन ऐसे मिलेगा, अभी चैप्टर 1 में मिल जाएगा। 3x³ प्लस 4x माइनस 2x ए माइनस 2 इज इक्वल टू 0। और आ जाएगा सपोज यहाँ आ जाएगा 4x³ माइनस 3x² प्लस 2x, ऐसे ही मिल जाएगा। आपको 3 इक्वेशन मिलेगा। आपको इमीडिएटली सॉल्यूशन चाहिए। आप कौन सा मेथड फॉलो करोगे? अलजेब्रिक मेथड में करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। आपको यहाँ मैट्रिक्स मेथड करना पड़ेगा। सीधा मैट्रिक्स फार्मूला में डालो और आंसर निकालो। क्यों पता है? इसका सॉल्यूशंस के लिए फिजिक्स वाला कोई मार्क्स नहीं देंगे। फिजिक्स वालों को चाहिए x की वैल्यू क्या है। जैसे आपको सपोज 3a² प्लस 4b माइनस 2c 3 वेरिएबल हो गया। ये a है, ये b है, ये c है। इसके सॉल्यूशंस आपको पता है कितना टाइम लगेगा अलजेब्रिक मेथड में? हम तो सीधा मैट्रिक्स मेथड में करेंगे। हम a b c ऐसे लिखेंगे, इसके कोएफिशिएंट नीचे लिखेंगे 3 4 माइनस 2 4 माइनस 3 2, फिर मैट्रिक्स फार्मूला अप्लाई करेंगे एंड वी विल गेट द आंसर। तो ऐसे जहां जो फॉर्मूला चाहिए, मैथमेटिक्स हमारे लिए क्या दिया है। सपोज आप कहीं मैकेनिक का काम कर रहे हो, आपके पास बहुत सारे टूल्स दिया हुआ है, बहुत सारे आपके पास क्या होता है उसको क्लास दिया हुआ है डिफरेंट साइज का। आपको जो साइज जरूरत है आप वही तो लोगे ना। तो हमारे पास टूल बॉक्स है मैथमेटिक्स। हम जहां जरूरत है हमारे लिए, जहां कांस्टेंट की वैल्यू जरूरत है, हम डिफरेंशिएशन मेथड लेंगे ही नहीं, इंटीग्रेशन मेथड लेंगे ही नहीं। ठीक है,
वन हु इज आस्किंग, आप इंटीग्रेशन ना थोड़ा बुक मैथमेटिक्स बुक से करो, सी की वैल्यू आपको पता चल जाएगा. ओके, नाउ यू टेक वन क्वेश्चन. एस टेल मी, टेल मी. खाली मैम मैम बोलने से नहीं हुआ, इमीडिएटली क्वेश्चन बोलो. मैम एक मैट्रिक्स मेथड नहीं, मैट्रिक्स मेथड में आऊंगी, मैट्रिक्स मेथड में आऊंगी, लेकिन जब चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा. वेट, मैट्रिक्स मेथड चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा तब से आप स्पीड पकड़ लोगे मैथमेटिक्स में. यू विल फॉरगेट क्लास 10th अलजेब्रिक इक्वेशन सॉल्यूशन मेथड, वी विल कम अक्रॉस. वेट, अभी ये प्रॉब्लम करो. यू आर गिवन x is equal to 3t³ minus 2t square plus 3t. आपको फाइंड आउट करना है वेलोसिटी 8 2 सेकेंड, एक्सीलरेशन 8 2 सेकेंड, एक्सीलरेशन when velocity is 0. स्टार्ट. वेलोसिटी डिस्टेंस से वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, जल्दी करो. 90 स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3 टाइम 2 सेकेंड. 2 सेकेंड में क्या हो जाएगा, 9 इंटू 2 के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 3 कितना हो गया, 51. 51. मैम 31. 51 थोड़ा आएगा. 31. ओके, देन एक्सीलरेशन. व्हाट इज एक्सीलरेशन, 18t minus 4. माइनस 4. तो 8 2 सेकेंड 32. 32. Acceleration on velocity is 0. How to find out? मैम रूट्स चेक कर लेंगे. कैसे करेंगे, एनी गेस? हम 0. Acceleration when velocity is equal to 0. Okay. How to do it? मैम वेलोसिटी हम चेक कर लेंगे कि कौन मतलब t के कौन से इंटरवल पे 0 है. Velocity is equal to 0. Then what is the value t? t के वैल्यू क्या होगा, 90 square minus 4t plus 3 is equal to 0. What is the value of t from this equation? Tell me. 90 square minus 4t plus 3 is equal to 0. क्वाड्रेटिक मेथड आ रहा है. You have to find out the value of t. Don't write your acceleration is 0 and velocity is 0. You have to find out the value of t from this equation. Put that t here. Then you will find acceleration. Is it understood? समझ में आ रहा है भव्य मिश्रा? Are you understanding? Yes, ma'am. आपको इस टाइप के क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में t के वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे. वेलोसिटी 0 कौन से टाइम में हुआ था, उसी टाइम में आपको एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है. Yes, Bhavya, I have got your answer. Any problem? हमें इस टाइप के न्यूमेरिकल्स करना है, इसीलिए हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़े. आपको कोई भी टाइम में पूछा जाएगा व्हाट इज वेलोसिटी व्हेन एक्सीलरेशन इज 0, एक्सीलरेशन को 0 कर दोगे. व्हाट इज वेलोसिटी व्हेन एक्सीलरेशन इज 0, इजीली यू कैन फाइंड आउट. एक्सीलरेशन जब 0 है तो कितना टाइम है, 18t minus 4 is equal to 0. तो t is equivalent to 4/18. 4/18 means 2/9. 2/9 is t में पुट कर दो, आपके लिए वेलोसिटी क्या हो जाएगा. अगर मैं इसको रिवर्स देती, एक्सीलरेशन 0 में वेलोसिटी कितना है, जस्ट सी यू कैन गेट इट इजीली. आपके लिए वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 9 इंटू 2/9 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2/9 प्लस 3. ये वैल्यू आप निकाल के रखते हैं. आर यू अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट? अभी नेक्स्ट जो चैप्टर हमारे शुरू होगा, इसमें बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल्स आए, इसीलिए हम आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन समझा रहे हैं. इज इट क्लियर? मेरा सिर्फ एक मकसद है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मैथमेटिकल टूल है, हम इसको क्यों पढ़ेंगे, हमारे कहाँ काम में आएगा, दैट आई हैव हेल्प्ड यू टू अंडरस्टैंड. कल से हम आएंगे फिजिक्स में. अभी तक ये मैथमेटिक्स था, उसमें से ये फिजिक्स बेस्ड न्यूमेरिकल है. Is the topic clear to you? Tomorrow we are studying kinematics. Yes or no? Sanket. Yes, ma'am. Give me Sanket. Sanket दो.
You are understanding? Yes. Constant x. Okay, you can leave the class. It is already time. Drishan, Thank you, ma'am. Drishan, you have to leave the class. Yesterday you don't